Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC Chapter number 1 Issue of Share. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 8 of the chapter in a very detailed manner. So let us move on with a short summarization of the previous video. Previously what we have seen. So as you all know, previously we have seen about the share forfeiting in a very detailed manner. The duties of the secretary regarding the share forfeiting and the portion of effect of that share forfeiting in the company. So let us have a short discussion of that. What is share forfeiting? Share forfeiting means when a person is not paying the call money at that time, the shareholder's share has been again revoked back, is considered as share forfeiting. So on a disciplinary action, when a company's directors snatch the share back after few notices due to the non-receipt of the payment of the call money, is considered as share forfeiting. So what are the procedure of share forfeiting? For doing the share forfeiting, first of all, there must be a provision on the article of the company. So they have to verify the article of the company in a very detailed manner. After that, the list of the call arrear is been prepared. So in that portion, we have to see whether who are the people who are non-received from the shareholder. So a different list of the call arrears are prepared by the secretary, and after that it has been presented by the company secretary to the board of the director. So in the board of the directors meeting, a resolution is passed regarding the share forfeiting and the reminder notices. Once the resolution is passed up, after that the notice means the first reminder notice is been sent up to the shareholders, those who have not paid the call money. They are being informed that one circular of the call money is been passed up, still they have not paid the money. It means call arrear is been seen up. So within the next 14 days with the interest amount, they have to pay the money. On that portion also, if they are not paying, then the final reminder is being sent up. In this final reminder, again a 14 days limit is extended and the interest is set for that 14 days, and even a warning is given up that if they will not pay in this 14 days, then their share will be forfeited by the company. So if some people fails to pay the call money in this reminder also, then next resolution again is passed by the meeting of the board of directors regarding the share forfeiting. After that, a notice is been sent to the shareholder regarding their forfeiting of the share. In that notice, it has been mentioned up that their shares are being forfeited. So they have to surrender their share certificate to the company again. So whatever amount they have paid for that particular share, that is forfeited by the company. After the notice of the forfeiture, public issue is been made in which it has been said up that serial number of these shareholders are being forfeited due to the non-receipt of the payment. After doing that, the last portion is that the list of the members are in which the list of the shareholders name is maintained. From that, the name of the shareholders are being removed up. Once removing the name from that portion, it means completely the shareholders are removed out of the company from the shareholders name. So these are the procedure of the shareholders share forfeiting. So this we have seen. So after that, we have seen what is the duty of the company secretary. So if you are seeing the duties of the company secretary, first of all, he or she has to verify the article of association for share forfeiting. Second, the list of the call arrears are must prepared. After that, a board meeting resolution regarding the share forfeiting must be passed up. After that, a first reminder notice must be mentioned up. Secondly, the second final reminder must be given up. If still they have not paid, then again a resolution must be passed
passed up for the share forfeiting, and in that the particular date on which it will be snatched up, that will be fixed up. After that, a notice is given to the shareholder, those who have not paid the money yet. After that, the public issue, which means on the newspaper, the advertisement of the share forfeiting must be given up, and then the list which it is maintained, from that removing of the name must be done of the shareholders, those who have not paid the amount, and finally the reissue of the share, and again adding the new shareholders and passing the resolution by the board of director. That is the final work of the company secretary. In this sense, she has or he has to work in this 9 procedure in a very detailed manner. After that, we have seen the effect of the share forfeiting. First of all, if you are seeing the effect, in that the shareholder is removed from the membership. Second, he or she is not able to get the dividend. Third, the board of the director has the full rights on the share forfeitures, or whatever decisions they have to take, it depends on them. And now, if you are seeing the shareholders is not an person of that company, so he is not able to vote or take any decision regarding that portion. And rather than that, the transaction with the shareholder is being removed up now. Even whatever amount he has paid, that is taken by the company, and this amount is kept on a forfeiture capital account by the company. The company are the owner for that fund. Until the shares are not reissued, up till that it is kept in that account, and then it is transferred to the company's account. In this manner, the company, by removing or taking the share forfeitures back, due to that the share capital or shareholders become less. That's why they can again reissue the share, and regarding the share forfeiting, the whole rights goes to the board of directors. So in this manner, these are the various 4 to 5 effects that we have seen on a detailed manner. Up till this, we have seen in a very detailed manner. I hope you all have understood that portion in a very better manner. So now today we are here to see the further portion. So let us move on with the today's portion in the further PDF in a very detailed manner. So students, now let us move on with the further portion of the chapter, which means surrender of share. You know that the shareholders has to surrender their share certificates when the share forfeiting notice is been given to them. So what is that portion and how they do that? Let us see that in a very detailed manner. Meaning, surrender of a share means returning the share certificate to the company. This concept is applicable to physical certificates of share only. So if you are seeing surrender of share का मतलब कहीं ना कहीं शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी के थ्रू दिया गया है उसको वापस कंपनी को रिटर्न करना है. बट ये सिर्फ और सिर्फ जिन्हें फिजिकल सर्टिफिकेट दिया गया उन्हीं को ही एप्लीकेबल होता है. डीमेट अकाउंट वालों को ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि जिनको हार्ड कॉपी शेयर का मिला हो उन्हें ही रिटर्न करना पड़ता है. डीमेट में तो यू नो दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली forfeited from the demat account. So let us see the circumstances of share surrender. Share certificates are returned to the company under the following certificates. When share certificates are torn, when share certificates become illegible, when there is no space left to record an entry of share transfer, when shares are to be consolidated, when shares are to be subdivided. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किस सर्कमस्टेंसेस पे शेयर सरेंडर किया जाता है. नीचे 5 सिचुएशंस दिया गया, उस सिचुएशन में शेयर सरेंडर किया जाता है. फर्स्ट तो शेयर फॉरफिटिंग तो हमें अच्छे से याद है, जो सेकंड पॉइंट पे दिया है व्हेन शेयर सर्टिफिकेट्स बिकम इल एलिजिबल. ठीक है, जब वो इल एलिजिबल होता है यानी वो मान्यता पे ही नहीं आए तो उसको सरेंडर करना पड़ता है. इन द सेंस अब जब वो फॉरफिटिंग हो जाता है. फर्स्ट वन है जब वो फट जाता है. व्हेन शेयर सर्टिफिकेट्स आर टोन अप, आपके पास रखा हुआ फट गया, यू नो दैट यू कैन नॉट मेंटेन इट अप, सो उस टाइम पे आप सरेंडर करके दूसरा नया ले सकते हो. सो थर्ड वन, जब स्पेस ना हो, जैसे आपने आपका शेयर किसी और को ट्रांसफर किया, उसने किसी और को किया, उसने किसी और को किया, इस तरीके से उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस होता है. उस पर्टिकुलर स्पेस पूरा हमने यूटिलाइज कर दिया. अब अगर हमें किसी नए को ट्रांसफर करना है, उसका नाम लिखने के लिए वहाँ जगह ही नहीं है, तो उसमें एंट्री करने के लिए जब जगह ना हो तब उसको सरेंडर करके नया लेना पड़ता है. व्हेन शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड, जब हमें उसे कंसोलिडेशन में करना पड़ता है तब उस टाइम पे भी हमें उसको रिटर्न
करना पड़ता है। रादर देन दैट जब सब डिवाइडेड किया जाए, जब उसको डिवाइड करना पड़ता है सबली, यानी उसमें से पार्ट किए जाने वाले, तो उस टाइम पे हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है। जैसे आपके पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर का सर्टिफिकेट, अगर आप उसमें से 50 किसी को देना तो उस टाइम पे भी आपको सब डिवाइडेड के लिए उस शेयर को रिटर्न करना पड़ेगा। सो इस 5 सर्कमस्टेंसेस पे आपको शेयर सरेंडर करके, कुछ सर्कमस्टेंसेस पे सरेंडर करके नया आपको एप्लीकेबल हो सकता है, बट कुछ पे नहीं। जैसे कि इल मतलब आपका फॉरफिचिंग कर दिया गया, तो उस टाइम पे आपको दूसरा नया मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इट इज शेयर लियन। Let us first understand the meaning of lien. When creditor receives the right to acquire possessions of the property of the debtors and the right to sell the same in order to recover his due, in the case of debtor failing to pay his liability is called lien. Now let us understand in the meaning of share lien. As per the Company Act, a company has a lien on only those shares it owns which are partly paid up for. By issuing lien on shares, a company can restrict transfer of such share, restrict dividend, restrict bonus share and restrict right to vote. So सबसे पहले हमें जो है लियन की मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। When creditor receives the right, जब क्रेडिटर यानी जो पैसे दे रहा है उसको ये राइट मिल जाता है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है डेटर का वो उसके हाथ में है, वो कभी भी उसको सेल कर सकता है, रिकवरी अपनी ड्यूज की मांग सकता है। अगर उसका जो ड्यू है पैसे उसको चुकता करना है, वो सामने डेटर ना दे रहा हो तो उसकी प्रॉपर्टी का हक जब उसके हाथ में आ जाता है तो ऑब्वियसली वो उसको बेच सकता है जब वो अपना लायबिलिटी चुकाने के लायक ना हो। फॉर एग्जाम्पल XYZ है और ABCD है, ABCD क्रेडिटर है और XYZ डेटर है। ABCD से XYZ ने 10,000 रुपीज लिया, ठीक है, ये 10,000 रुपीज उसको ABCD को देना, बट डेटर जो है क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पा रहा, उस टाइम पे इसका जो असेट्स है उसका हक इसके हाथ में आ जाता है। अगर इसके हाथ में आएगा तो कब आएगा, जब ये पे करने के लायक ना हो उस टाइम पे इसके हाथ में आएगा। दैट टाइम ये उस प्रोडक्ट को यानी प्रॉपर्टी को बेच सकता है या कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हक इसमें पैसे उसको देना है, वो दे नहीं रहा है, प्रॉपर्टी का हक इसने ले लिया इसलिए उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकता है। इसे कहीं ना कहीं लियन बोला जाता है। अब शेयर लियन का मतलब हम समझते हैं। कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी तभी लियन हो सकता है यानी वो शेयर का हक ले सकता है जब शेयर जो है पार्टली इशू किया गया हो बट उसका पे अप पार्टली किया हो, पूरा पेमेंट ना किया गया हो और पार्टली आधा पेमेंट किया आधा नहीं किया, तो उस टाइम पे एक कंपनी उस शेयर का लियन बन सकता है। तो उसमें कंपनी क्या क्या कर सकता है, पहले ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तुम तुम्हारा शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक फुल्ली पे अप नहीं होता है, फर्स्ट। सेकेंड, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है डिविडेंड, तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा जब तक तुम पूरा पेमेंट नहीं करते हो। थर्ड, बोनस शेयर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अभी तक शेयर का पूरा अमाउंट नहीं पी गया, पूरा अमाउंट पे करो फिर आपको शेयर का बोनस मिलेगा, यानी थर्ड रेस्ट्रिक्शन। फोर्थ, आप वोटिंग नहीं कर सकते, आप यू नो दैट ये चारों चीजें जो बताया गया ये एक शेयर होल्डर का हक होता है, अगर ये हक ही उससे हम छीन लेंगे तो वो क्या करेगा, पेमेंट पूरा करेगा। सो इस तरीके से पेमेंट को रिसीव करने के लिए ये 4 रिस्ट्रिक्शन एक कंपनी शेयर के ऊपर लगा सकता है एज अ कंपनी। तो शेयर लियन इस तरीके से देखा जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पोर्शन, शेयर डिविडेंड। So I'm going to read it out, listen it out carefully. A company pays tax at the end of the year out of the profit earned for a year. The amount of profit left after the payment of a tax is called divisible profit. A certain amount of the divisible profit is returned as a reserve by the company. The remaining profit is distributed among shareholders and is called dividend. The dividend means the share of divisible profit distributed by the company among to its shareholder on the basis of the paid up share capital on shares held by them in form of cash or share or in any other form. Here it is important to note that as per Indian Company Act, dividend can be paid in cash only. So सबसे पहले dividend का मतलब क्या है? You know that हर साल जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस टाइम पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है
उस पैसे को हम डिवाइजेबल प्रॉफिट बोलते हैं, यानी जिस प्रॉफिट को हम अभी डिवाइड करेंगे, इसीलिए उसे डिवाइजेबल प्रॉफिट बोला जाता है। डिवाइजेबल प्रॉफिट में से भी कुछ अमाउंट, जैसे 1 लाख प्रॉफिट है तो उसमें से 10,000 5% या 10% रिजर्व किया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उस पैसे को एज अ फंड यूज किया जाए। तो रिजर्व करने के बाद जो 90% पोर्शन बचा है, यानी अभी 90,000 बचा है, अब ये 90,000 को इक्वली जो है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसे डिविडेंड बोला जाता है। इक्वली यानी सबको 10-10 हजार, नो, उनके पास जितना शेयर हो उस हिसाब से उस 90,000 में से उनको जो अमाउंट पे किया जाता है उसे जो है डिविडेंड बोला जाता है। अब डिविडेंड का मतलब, मीनिंग क्या? डिविडेंड का मतलब जो डिवाइजेबल प्रॉफिट है उनमें से कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर्स ने जो पैसे शेयर कैपिटल में लगाए उसके हिसाब से उनको कैश में या शेयर में कोई भी फॉर्म में उन्हें जो रिटर्न बैक देता है, उसे हर साल जो रिटर्न बैक देता है उसे कहीं ना कहीं शेयर डिविडेंड माना जाता है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंटली हमें ये नोटअप करना है, इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के रूप में कैश ही उन्हें रिटर्न करना है, शेयर नहीं देना। सो लेट अस सी द फर्दर पोर्शन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। डिविडेंड कैन बी ऑफ 2 टाइप: interim dividend, final or annual dividend. Interim dividend is paid semi-annually during the year. Final or annual dividend is paid at the end of the year out of the profit of the year. Dividend is paid to equity shareholders as well as preference shareholder. Dividend paid on preference shareholder at a fixed rate of dividend before paying dividend on the equity share is called preference डिविडेंड। सो यहाँ पे डिविडेंड को अगर हम देखें तो डिविडेंड को 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल एनुअल डिविडेंड। इंटरिम मतलब 6 महीने के बीच में दिया जाए, ठीक है। फाइनल मतलब पूरा साल का एक लास्ट में, एंड में 1 साल के बाद पूरा जो प्रॉफिट है उसमें से एक डिविडेंड दिया जाए, तो उसे फाइनल या एनुअल डिविडेंड बोला जाएगा। बट डिविडेंड में हमेशा आप याद रखो, डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया जाता है। नाउ यू कम टू द सिनेरियो अगेन, 90,000 वाला जो हमने एक एग्जांपल देखा, 10,000 रिजर्व में रख दिया, 19,000 हमें रखा, उसमें से 30,000 जो है प्रेफरेंस शेयर का। तो सबसे पहले 19,000 में से हम 30,000 निकालेंगे, उसको पहले प्रेफरेंस होल्डर्स को देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो सबसे प्रायोरिटी पे यानी फर्स्ट बेस पे दिया जाता है, तो उसे प्रेफरेंस डिविडेंड बोला जाएगा। वो देने के बाद जितना अमाउंट बचता है, और इवन प्रेफरेंस शेयर का फिक्स्ड रेट होता है, जैसे 10% प्रॉफिट में से 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए होता है, इस तरीके से एक फिक्स्ड रेट पे देखा जाता है। बाकी का जो अमाउंट बचता है वो शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी एक्ट, एज पर कंपनी प्रोविजन एक्ट अगर हम बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी यानी फर्स्ट ऑप्शन पे रखा जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड दिया जाता है। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पोर्शन। Therefore, preference dividend is paid first, and then the board of directors recommend how much of the remaining divisible profit can be distributed as equity dividend. The equity dividend recommended by the board of directors is approved by the shareholders in the annual general meeting of the company. After the approval of the equity dividend in the annual general meeting of the company, it is paid between the 16 days of such approval. Equity dividend is based on the profit of the company and needs of funds for the company in the future. The board of directors decides the rate of equity dividend by taking into consideration the need of funds of the company. Funds for the company. It is not legally necessary for a company to declare and pay equity dividend every year, and its rate may be changed year to year. सबसे पहले हम जैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे करते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है वो डायरेक्टली पे नहीं किया जाता है, उसके पहले एनुअल जनरल मीटिंग रखा जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट एज ए डिविडेंड हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना
चाहिए, और जो डिसीजन एनुअल मीटिंग में होता है उसके प्रायोरिटी पे रख के, यानी उसके बेसिस के ऊपर नेक्स्ट 60 डे के अंदर उनको वो डिविडेंड दिया जाता है। इस तरीके से कंपनी सबसे पहले फ्यूचर में उनको कितना फंड चाहिए, किस तरीके से, ये सारा डिसाइड करके ही इक्विटी शेयर होल्डर को पे करता है। सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड मिले ये नेसेसरी नहीं है। तो हर साल लीगली कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा ये भी नेसेसरी नहीं है, बट हर साल जो रेट ऑफ डिविडेंड है ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट देखा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ पे शेयर डिविडेंड खत्म होता है, इवन हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। So I hope you all have understood this chapter in a very well manner. So now let us move on to the today's portion in the further video regarding the revision that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the surrender of shares and the share lien and share dividend in a very detailed manner. And as you all know, today we have completed the chapter also. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. First of all, surrender of share. सरेंडर ऑफ शेयर मतलब जब एक शेयर होल्डर अपना शेयर वापिस, शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी के थ्रू उसे दिया गया वो वापिस रिटर्न करता है कंपनी को, उसे शेयर सरेंडर बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब फिजिकल सर्टिफिकेट यानी हार्ड कॉपी शेयर होल्डर्स को दिया गया हो। डीमेट अकाउंट में अगर जो है ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है तो उसका कहीं यहाँ पे अप्लीकेबल शेयर सरेंडर का देखा नहीं जाता। जो फिजिकल शेयर है उसी को ही सरेंडर किया जा सकता है। तो कौन से सर्कमस्टेंसेस पे शेयर सरेंडर किया जा सकता है, वैसे एक 5 सर्कमस्टेंसेस दिया गया है। सबसे पहले जब शेयर सर्टिफिकेट फट जाए, यू नो दैट पेपर के रूप में हमें जब कोई चीज दिया जाता है पॉसिबिलिटीज होता है कि वो फट जाए, जब शेयर फट जाता है तब हम उसको वापस सरेंडर कंपनी को करके नया इशू करवा सकते हैं। सेकेंड, जब वो इल एलिजिबल हो जाए, जैसे शेयर फॉरफिटिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल उसने पे नहीं किया, उसका शेयर फॉरफिटिंग हो गया, यू नो दैट वो इल एलिजिबल है, अब वो एलिजिबल नहीं है मार्केट में, तो हमें उसे वापस सरेंडर करना पड़ता है, तब हमें नया शेयर नहीं मिलता है। थर्ड वन, जब उसमें ट्रांसफर के लिए नाम ना बचा, यू नो दैट फिजिकल शेयर में नाम लिखा जाता है बार बार जब उसे ट्रांसफर किया जाता है, अगर उसमें जगह अब ना स्पेस ना लीव किया हो तो उस टाइम पे हम शेयर को रिटर्न करके नए शेयर की डिमांड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। जब उसे कंसिडरेशन में देखा जाए, यानी उसको जब कंसिडरेशन में करना हो तभी भी हमें उसे वापस देना पड़ता है, सरेंडर करके नया इशू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर हमें सब डिवाइड करना पड़ता है, जैसे हमारे पास 100 शेयर, 100 में से हमें 50 किसी को बेचना है, 50 हमें रखना है, तो उस टाइम पे भी हमें उसे रिटर्न बैक करना पड़ता है। तो इस 5 सर्कमस्टेंसेस में हमें शेयर जो है सरेंडर करना पड़ता है कंपनी के बाद, ये बोला जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट शेयर लाइन। सो शेयर लियन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लियन की मीनिंग हमें पता होना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल देखा था वीडियो के अंदर कि जब एक क्रेडिटर एक डेटर को पैसा देता है, वो डेटर जब उस पैसे को वापस रिटर्न नहीं कर पाता है, उस टाइम पे क्रेडिटर क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी पे हक कर देता है और उतने अमाउंट का प्रॉपर्टी खुद ले लेता है, तो उस प्रॉपर्टी को कभी भी बेच सकता है। वो कब ऐसा करेगा, जब डेटर पैसे वापस रिटर्न करने के लायक ना हो। हमने इसका एग्जांपल शॉर्ट एंड स्वीट किया, आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करेगा, आप क्या करोगे, उसके घर पे 2-3 बार जाओगे, वो नहीं देगा, तो आप देखोगे 10,000 का कोई अमाउंट है, आपने 10,000 उसको दिया, 10,000 का टीवी हो तो टीवी आप उठा के ले आते हो। काफी बार ऐसा होता है रियलिटी में, हम टीवी ले आते हैं और उसको बेच के पैसे देख लेते हैं। तो इन दिस सेंस जब ये किया जाता है उसे लियन बोला जाता है। तो उसी तरीके से शेयर लियन का मतलब क्या, जो पार्टली पेड अप शेयर्स है, कंपनी एक्ट के हिसाब से 100 रुपीज का शेयर है, बट आपने सिर्फ 60 पे किया, 40 पे नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे कंपनी डायरेक्ट आपका शेयर फॉरफिटिंग ना करना चाहे तो क्या करेगी, तो आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, यानी आपकी जो बेसिक हक है वो सब छीन लेगी। फर्स्ट, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप आपका शेयर बेच नहीं सकते, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आप वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे मेन हमारे हक होते हैं, ऐसे 4 जो हमारे हक होते हैं वो छीन लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, या तो फुल्ली पेड अप कर देंगे या तो हम उसको क्या करेंगे, भाई शेयर फॉरफिटिंग ही कर लो, ऐसा वाला सिनेरियो आ जाता है। तो इसे शेयर लियन माना जाता है। नेक्स्ट वी हैव सीन इन अ डिटेल मैनर द शेयर डिविडेंड। सबसे पहले शेयर डिविडेंड क्या होता है। शेयर डिविडेंड मतलब यू नो दैट पर्टिकुलरली हर साल एक प्रॉफिट अमाउंट देखा जाता है। प्रॉफिट अमाउंट में से हमें सबसे पहले टैक्स पे करना पड़ता है।
टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब इस प्रॉफिट को हमें काफी सारे लोगों के बीच कंपनी में बांटना है, इसे उसे डिविजिबल प्रॉफिट माना जाता है। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट में से जो अमाउंट पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को उन्होंने जो शेयर खरीदा है उसके बेसिस पे डिसाइड करके जो चीज दिया जाता है, रिटर्न बैक ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, उसे डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड एज पर द कंपनी एक्ट, डिविडेंड जो है कैश में दिया जा सकता है या कोई अदर फॉर्म में दिया जा सकता है। बट इंडियन कंपनी एक्ट की अगर हम बात करें तो कंपल्सरीली हमें उन्हें कैश में प्रॉफिट देना है, यानी डिविडेंड पे करना है। सो डिवाइजेबल डिविडेंड पे करने के पहले अब डायरेक्ट डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। जैसे ही हम टैक्स पे करते हैं उसके बाद कितना फंड हमें चाहिए, रिजर्व कितना हमें फ्यूचर के लिए चाहिए, उतना रिजर्व रख के जो अमाउंट बचता है उसमें से डिवाइड पे किया जाता है। इसमें भी एक अलग सिनारियो होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी में फर्स्ट रिजर्व को हटाने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया जाता है, जो फिक्स्ड रिटर्न होता है। हर साल फिक्स्ड इतना इनको रिटर्न मिलेगा, जबकि डिविडेंड जो इक्विटी शेयर को दिया जाता है वो फिक्स नहीं होता, ज्यादा आए तो ज्यादा, कम आए तो कम, इस तरीके से डिफरेंशिएट पे देखा जाता है। तो प्रायोरिटी में उनको पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें एक एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट देना है, और रेट हर साल चेंज होता है, और शेयर होल्डर्स उसमें एग्री हो तभी उतना डिविडेंड उनको पे किया जाता है। नहीं एग्री हो तो वापस रिकंसिडरेशन देके उनके एग्रीमेंट के हिसाब से ही दिया जाता है। और जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है उसके 60 डेज के बाद उन्हें पेमेंट दिया जाता है। इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को फ्यूचर में कितना फंड चाहिए और किस तरीके से शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना, ये दोनों सिनारियो कंसिडर करते। अब डिविडेंड दो तरीके से दिया जाता है, इंट्रीम एंड फाइनल, यानी 6 महीने के एक बार डिविडेंड दिया जाता है या साल में एक बार। सो फाइनली साल में एक बार जो दिया जाता है वो फाइनल बोला जाता है, और 6 महीने के एक बार जो दिया जाता है उसे इंट्रीम डिविडेंड बोला जाता है। इसके अलावा नेसेसरी नहीं है कि हर साल कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करे, ये हो सकता है कंपनी कभी कई बार डिक्लेयर भी ना करे, प्रॉफिट होने के बावजूद वो रिजर्व में डाल दे, डिक्लेयर ना करे। बट मोस्ट प्रोबेबली हर साल हर एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर तो करता ही है, बट हर साल उसका रेट कहीं ना कहीं अलग होता है। नहीं देने से अच्छा कम रेट में कहीं ना कहीं डिविडेंड दिया जाता है। सो इस तरीके से इस टॉपिक को आज हमने डिटेल में देखा, यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन in a very well manner. Now you know that what is your portion. So now complete your exercise in a very detailed manner. I hope you all have understood the today's portion in a very well manner. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.